चलिए, स्वागत है आप सभी का। केस स्टडी नंबर कौन सा चल रहा था सर? भूल गए? केस स्टडी नंबर 5 के सोल्यूशन वीडियो में प्रथा के मुताबिक सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिक्वायर्ड पार्ट। ठीक है, आ जाइए। एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इश्यूइंग और ग्रांटिंग इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड? इसमें डीजीएफटी आता है। ठीक है, बाद में करेंगे अपन आराम से। What should CA Nitin advise CA Krit to do when the latter is stuck in the revision dilemma of materiality levels set earlier? ठीक है, देखते हैं ऑडिट का क्वेश्चन है। 3. Statement 1. GST is leviable on fabric imported from Paris while filing of its clearance. Statement 2. GST is not leviable on the sales made to Pankia Private Limited. मतलब GST का कोई क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। In the above case, Robert De Niro's branch office in India proposes to offer subscription to securities of Alpha Units LLC. Before going with the subscription, it should be necessary to: Statement 1. File a prospectus dated and signed. Statement 2. The prospectus shall, ये थोड़ा मिस्टेक था इसमें, तो मैंने गेस किया है कि मेंशन लिखा होगा। मेंशन द डेट ऑन विच एंड द कंट्री इन विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। मतलब कंपनी लॉ का प्रोस्पेक्टस का इंटरमीडिएट का क्वेश्चन देखेंगे। Statement 1. In case of trading involving B in Greece and C in Singapore, invoicing should have been done by ABCD Limited in India. क्वेश्चन में मिस्टेक था, मैंने आंसर के हिसाब से क्वेश्चन को मॉडिफाई किया। क्यों किया है देखेंगे अपन बाद में। Statement 2. Value of such shipments has to be included by ABCD Limited in the value of exempt supply for the purposes of reversal of ITC under Rule 42 and 43 of CGST rules. ये वापस GST का क्वेश्चन आ गया। Descriptive. Provide the accounting treatment with respect to transaction between ABCD and PQRS Limited in the respective books of accounts. Also show its impact on the consolidated financial statement. Support your answer by journal entries wherever necessary in the books of ABCD Limited. Additional information में exchange rates दिया है। सबसे पहली बार FR का क्वेश्चन आया है केस स्टडी में, तो खुश हो जाओ थोड़े से। ठीक है। 7. Alpha Units LLC has set up a branch office in Surat. Discuss its implications under the Companies Act 2013. Which documents have to be furnished on establishment of branch office of a company incorporated outside India under Companies Act? ठीक है, ये वापस Companies Act का क्वेश्चन है। फॉरेन कंपनीज का, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अच्छा, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का चैप्टर सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के लॉ में नहीं है। तो ये इंस्टीट्यूट क्या करना चाह रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है, सेल्फ पेस्ड में नहीं है, ओल्ड सीए फाइनल में था, तो इंस्टीट्यूट को इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। डिस्कस implications of the proposed transaction relating to sending of company's merchandise for display in textile fair in Italy. Also discuss under what circumstances goods sold within India can be categorized under exports under the GST law and also touch upon taxability of such transaction under such law. ठीक है, ये रिक्वायर्ड पार्ट था। रिक्वायर्ड पार्ट में देखा FR है, कंपनी लॉ है, IDT है। अच्छा, कंपनी लॉ बहुत पुराना भी दे दिया है। ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, उसका दिया है इंस्टीट्यूट ने, सॉल्व करना पड़ेगा। अब केस स्टडी पढ़ते हैं। ठीक है जस्ट चलिए केस स्टडी पढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ी आवाज़ अजीब लग रही हो तो चला लेना, थोड़ी सर्दी है। ठीक है। ABCD Limited is a textile manufacturing company based in Surat, Gujarat, which employs a vintage of more than 50 years of good reputation and business. Enjoys, employs नहीं है। ठीक है। The company has set up by Mr. Amar Dev in 60s in a small room, and as years passed by, it became a successful and big business that now, after serving domestic consumers, the company is said has gone global and expanding its business across Europe and Canada through third-party sales from India. Mr. Rahul Dev, son of Mr. Amar Dev, is the MD of the company and has been following quite an aggressive approach in globalizing their business after graduating from college. He remains in constant touch with CA Nitin Garg, partner of Nitin Garg and Company, chartered accountants, and keeps on discussing with him the legal compliances and procedures. मतलब ये नॉइज है, कंपनी का बैकग्राउंड दिया, काट देंगे। Rahul knows that the complexities in business have increased a lot, particularly after advent of GST, and it is imperative to diversify its ever-expanding business. He understands that their company is well integrated into the business of international business transactions. There is inward as well as outward flow of goods and services between India and other countries. GST impacts imports and exports too. Provisions in the GST law seek to: 1. Provide a level playing field to the domestic vis-a-vis the international suppliers in case of imports, and number 2. Make exports more competitive.
He has been discussing various provisions of GST law as will be applicable on import and export supplies with respect to their business if they wish to enter the global market directly. अभी वो लोग थर्ड पार्टी के उधर से सप्लाई करते हैं, अगर उनको डायरेक्ट मार्केट में आना मतलब डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो जीएसटी के क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं वो भाई साहब अपने सीए से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल कस्टम्स लेवी, ये भी नॉइस था, काट दो, 2 पैराग्राफ नॉइस के हैं, काट देने के। टू एक्सपैंड बिजनेस, राहुल इज इन टॉक्स विद रॉबर्ट डे नेरो, वन ऑफ हिज फास्ट फ्रेंड्स whom he met during his graduation in London and who is currently an owner of a famous international clothing brand Alpha. Robert wants to establish a company in India and seeks Rahul's help, who further consults CA Nitin Garg on helping Robert set up a branch office in India. Robert's venture Alpha Units LLC is a limited company incorporated in London in year 2011 and he desires to establish a branch office in Surat in 2023. मतलब जो अपना मेन कैरेक्टर है केस स्टडी का, इसमें भी कैरेक्टर होता है, उसका एक दोस्त है जिसकी लंदन में एक कंपनी है और उसको अभी इंडिया में आना है, ठीक है। तो ये स्टोरी पूरी चेंज हो गई, वो पिक्चर में नहीं होता स्टोरी बस लंदन में चल, ठीक है। Nitin, being a practicing chartered accountant, is appointed by Robert as a liaison officer for compliance of legal formalities on behalf of the company. Nitin helps them in the legal compliance, research, feasibility, documentation, and procedural work to set up the branch office in India. Rahul, in order to expand his business, discusses with Nitin on setting up a subsidiary outside India at Paris for specifically carrying out the import-export transactions easily, and soon after Rahul sets up a subsidiary in Paris अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ PQRS लिमिटेड। मतलब देखो राहुल का दोस्त है, उसको इंडिया में ब्रांच ऑफिस खोलनी है और राहुल भाई साहब को पेरिस में अपनी एक कंपनी बनानी है, ठीक है। ये दो चल रहा है अभी तक और दोनों को हेल्प कौन कर रहा है? अपन, सीए नितिन गर्ग, ठीक है। ABCD Limited is engaged in the manufacturing of cloth and other textile companies. Sorry, एक सेकंड। ABCD Limited is engaged in the business of manufacturing cloth for other textile companies and non-textile companies. मतलब अपन मैन्युफैक्चरिंग करता है क्लोथ का और अपन टेक्सटाइल कंपनीज को देते हैं, नॉन टेक्सटाइल कंपनीज को भी देते हैं, ठीक है। Now the company will be itself carrying out the import-export transaction without involving any third party for export purposes, which it had been doing till now. मतलब अपन अब तक क्या करते थे? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए थर्ड पार्टी पे रिलाई करते थे, अब वो हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। It applies for the IEC code online and gets the same. इसका MCQ है। Its wholly owned subsidiary PQRS Limited is engaged in the business of ready-made designer garments. The subsidiary purchases garments and other stuffs from its parent company. मतलब जो पेरेंट में अपना पेरिस में अपनी सब्सिडियरी है वो अपन से गारमेंट्स खरीदती है और फिर वहाँ पे डिजाइन करती है। The demand of garments of PQRS Limited is very high and hence to cater its shortfall, PQRS also purchases from other companies. मतलब PQRS जो पेरिस में है वो अपन से भी परचेस करती है और दूसरी लोकली भी परचेस करती है और लोकली क्या इंटरनेशनली भी परचेस करती है। Purchases are made at competitive prices. During the year 2023-24, ABCD Limited sold garments to PQRS Limited for euro 13 lakhs on 1st January 2024. The cost of these garments was 936 lakh in the books of ABCD Limited at the time of sale. 13 लाख यूरो का सेल किया जिसकी कॉस्ट 936 लाख रुपीस थी, ठीक है। At the year end 31st March 24, all these garments were lying as closing stock with PQRS Limited. Euro is the functional currency of PQRS Limited, while Indian rupee is the functional currency of ABCD Limited. As expected, जो पेरिस में कंपनी है उसका फंक्शनल करेंसी है यूरो, जो इंडिया में कंपनी है जो होल्डिंग है उसका फंक्शनल करेंसी है INR. ABCD Limited seeks help of CA Nitin Garg in the following issues. During the year, Rahul is finding very difficult to comprehend the GST taxation with respect to export sales made by their company ABCD Limited, which are of a peculiar nature. मतलब एक particular export transaction हमने किया है जिसका GST हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे लगने वाला है। One such sale is ABCD Limited receives an offer to supply goods to dealer B in Greece, for which the company finds a supplier C in Singapore. मुझे ग्रीस से ऑर्डर आया, मैंने सिंगापुर में एक बंदे को पकड़ा, बोला तू उसको भेज दे वापस। ग्रीस से ऑर्डर आया, मैंने सिंगापुर के एक सप्लायर को बोला तू उसको भेज दे। इंटरनेशनल बिल टू शिप टू हो गया है। क्या हो गया? इंटरनेशनल बिल टू शिप टू हो गया। एंड आस्क्स हिम टू सप्लाई द गुड्स टू बी इन ग्रीस। 2 invoices आर रेज्ड हियर इन इंडिया, वन बाय द कंपनी बी ऑन ग्रीस, सिंगापुर जो इंडिया की कंपनी
उसका कस्टमर है ग्रीस में, उसको भेजा सिंगापुर से, तो मेरा कस्टमर है तो मैं तो ग्रीस में इनवॉइसिंग करूंगा, करेक्ट। एंड अदर बाय सी इन सिंगापुर ऑन एबीसीडी लिमिटेड इन इंडिया, इंटरनेशनल बिल टू शिप टू। देखो क्या हुआ, सिंगापुर से माल गया ग्रीस में, कस्टमर कौन था, मैं, किसका, सिंगापुर का, और मेरा कस्टमर कौन था, ग्रीस। तो मैंने ग्रीस पे इनवॉइसिंग किया और सिंगापुर ने मेरे ऊपर इनवॉइसिंग किया, ठीक है, सिंपल। The point to be noted here is that goods do not touch the Indian shores. They are shipped by sea from Singapore to be in Greece. There are many more of such kind of export sales, and Rahul seeks CA Nitin's help in getting out of this confusion. International bill to ship to का GST implication समझना है और हम समझाएंगे उसको. Rahul seeks CA Nitin's opinion on GST procedures and treatment for the following two types of export transaction which he plans to proceed in the near future. Number one. Rahul has purchased a license to put up a stall in the textile supermarket Global Fair to be held in Milan, Italy, and he wishes to send his team to this fair along with their company's merchandise to be displayed over there for the promotional purposes. वहाँ पे जाके, इटली में जाके मुझे एक फेयर में पार्टिसिपेट करना है एंड अपने गुड्स को वहाँ पे मार्केटिंग करना है, ठीक है। He had heard from a dear friend that he could sell his company's product within India, but this could still be categorized as exports. He is eager to know about such circumstances. ठीक है. See, the chief accountant of company further seeks CA Nitin's time to understand about the valuation and taxability of the following transactions under GST. ABCD Limited has imported a special fabric from Paris and files an ex-bond bill of entry for clearing such warehouse goods for home consumption. दूसरा देखते हैं. ABCD Limited imported textile fabric from London and sells them to Penkia Limited in India itself before the goods were cleared for home consumption. इसको बोलते हैं IC sales. The customs declaration, that is bill of entry, is filed by the agent Penkia Limited for the clearance of such goods. ठीक है, इतना खत्म हो गया. अब वापस से क्लास पैराग्राफ. The statutory audit of the company ABCD Limited is also being carried out by CA Nitin Garg and Company under the supervision of engagement partner CA Krit Garg. CA Krit understands that as the auditor, he should develop an audit plan that shall include a description of the procedures to be performed as per SA 315 and 330. The audit plan is more detailed than the overall audit strategy that includes the nature, timing and extent of the audit procedures to be performed by the engagement team members. Audit plan में NTE of audit procedures to be performed होता है, audit strategy में नहीं होता. Planning of these audit procedures take place over the course of the audit as the audit plan and of the engagement develops. Audit plan is a iterative process. Inter में पढ़ा होगा. Planning is an iterative and continuous process. He asks Megha in his audit team to work on planning the nature, time and extent of specific further audit procedures and Saurabh on planning of risk assessment procedures. Further, CA Krit notes that overall audit strategy and audit plan should take into consideration element of materiality and its relationship with risk and procedures to be adopted. CA Krit has already developed an audit strategy and while a detailed audit plan is being developed, audit strategy बन चुकी है, audit plan बन रहा है. He decides that the materialities levels set earlier need to be lowered as weakness in internal controls will highlighted in the internal audit reports. क्या हो रहा है, audit strategy बन रही है, ऑडिट स्ट्रैटेजी बन गई है, ऑडिट प्लान बन रहा है. तब मैंने देखा कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में कोई वीकनेसेस दिखी जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मटेरियलिटी को लो कर दो, टेस्टिंग ज्यादा करो. मटेरियलिटी लो होगा तो टेस्टिंग ज्यादा होगा, ऑब्वियसली. Subsequently, a deviation from audit strategy is felt necessary and he is stuck in a dilemma what to do first. Modify the audit strategy and then revise the audit plan or vice versa and seeks CA Nitin's suggestion. ठीक है, हो क्या रहा है, शांत हो जाओ, हो क्या रहा है, बहुत बड़ा था. सबसे पहले एक रॉबर्ट डेनेरो है, उसको इंडिया में एक सब्सिडियरी खोलनी है. राहुल को एक सब्सिडियरी पेरिस में खोलनी है, उसने खोल दी. ठीक है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस है जिसका अकाउंटिंग भी बताना है, जीएसटी भी बताना है. ठीक है, ये हो गया. ऑडिट हो रहा है, ऑडिट में क्या हुआ, ऑडिट स्ट्रैटेजी बन चुकी थी, ऑडिट प्लान बन रहा था. तब इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में वीकनेस दिखी तो हमने मटेरियलिटी लेवल को लो करने का डिसीजन लिया. अब पहले स्ट्रैटेजी मॉडिफाई करे या पहले प्लान मॉडिफाई करे, उसका कंफ्यूजन है और उसके लिए सीए नितिन की सजेशन है. तो हम कौन है इस केस स्टडी में, सीए नितिन. हु आर वी, सीए नितिन. हमको सबको एडवाइस करनी. ठीक है, ये एक बार पढ़ लो फटाफट
एंड देन वी विल मूव टू द आंसर्स। और पढ़ना, ठीक है, मैं जब पढ़ने का बोल के पॉज करता हूँ, यू हैव टू रीड द केस स्टडी पूरी, ऐसा नहीं कि सीधा कंटिन्यू कर दिया, ठीक है, पढ़ो। चलिए आंसर डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इश्यूइंग और ग्रांटिंग आईईसी, डीजीएफटी आता है इसमें, ठीक है, डीजीएफटी करता है, ये कोई नहीं करता, सिंपल। What should CA Nitin advise CA Crit to do when the latter is stuck in the revision dilemma of materiality level set earlier? अच्छा, सबसे पहले क्या बनता है सर? स्ट्रैटेजी। फिर क्या बनता है? प्लान। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मटीरियलिटी रिवाइज हो रही है तो पहले स्ट्रैटेजी चेंज होगी, फिर प्लान चेंज होगा। स्ट्रैटेजी चेंज होगी, फिर प्लान चेंज होगा। फर्स्टली मॉडिफाई द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड देन आफ्टर प्रिपेयर्ड ऑडिट प्लान इन द लाइंस विद द स्ट्रैटेजी। क्या आंसर लिखा है इंस्टीट्यूट ने? CA Grid should first modify the strategy and thereafter prepare audit plan. This shows that the audit strategy and audit plan are closely interrelated. ठीक है, सबसे पहले बनता क्या है? स्ट्रैटेजी। सबसे पहले चेंज क्या होगा? स्ट्रैटेजी। अच्छा, इससे फर्क आएगा स्कोपिंग में भी, स्कोपिंग भी चेंज हो जाएगी। मटेरियलिटी कम हुआ तो इन स्कोप ज्यादा आइटम्स हो जाती है, ठीक है, ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहा इसमें, रेलेवेंट इतना ही, नो कंफ्यूज हो जाओगे। 3. Statement 1. GST is leviable on fabric imported from Paris while filing for its clearance. GST is not leviable on the sales made to Pankia Private Limited. अच्छा, ये क्या था? ध्यान दो यहाँ पर। ABCD Limited has imported a special fabric from Paris and files an ex-bond bill of entry for clearing such warehouse goods for home consumption. अच्छा, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री होता है, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री होता है। इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री हम तब फाइल करते हैं जब हम गुड्स को वेयर हाउस कर देते हैं, तब जीएसटी नहीं लगता। जब एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है फॉर होम कंजम्पशन, तब अपना जीएसटी आईजीएसटी लेवी हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल। ABCD Limited imported textile fabric from London and sells to Pankia Private Limited in India itself before clearing the goods for home consumption। मतलब हाई सी सेल्स कर दिया। तो जब वो अगला, जब बंदा एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करके होम कंजम्पशन के लिए गुड्स को क्लियर करवाएगा, तब उस पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। थोड़ा आज तबियत खराब है तो थोड़ा अबा डबा जबा हो रहा है, बट चला लेना, ठीक है, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है इसलिए। In the above case, Robert De Niro's branch office in India proposes to offer subscription to securities of Alpha Units LLC. Before going with the subscription, it should be necessary to file a prospectus. The prospectus shall mention the date on which and the country in which the company was incorporated. Both statements are correct, ठीक है। डेट भी मेंशन करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस को साइन भी करवाना पड़ेगा। इस एमसीक्यू में मिस्टेक था, इसलिए मैंने स्किप लिखा है, आपको स्किप करना हो तो स्किप कर देना, क्लैरिटी आएगी तब पता चलेगा, ठीक है। वो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। लास्ट स्टेटमेंट 1, इन केस ऑफ ट्रेड इन्वॉल्विंग बी इन ग्रीस सी इन सिंगापुर, इनवॉइसेस, इसमें मिस्टेक क्या थी वो बताता हूँ। Invoices should not have been done by ABCD Limited in India. Statement 2. Value of such shipments has to be included by ABCD Limited in the value of exempt supply for the purposes of reversal of ITC under 42 and 43. अच्छा, ध्यान दो ना, इंटरनेशनल बिल टू शिप टू में जब इंडिया में गुड्स टच अप ऑन नहीं हो रहे, मैंने सिंगापुर में बोला कि ग्रीस को बेच दे, तो उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है। जीएसटी इज नॉट एट ऑल लेविएबल, तो एग्जाम की तो बात नहीं आई। जीएसटी जब लगता ही नहीं है, जीएसटी के परव्यू से ही बाहर है, ठीक है, तो जीएसटी लगेगा नहीं, तो एग्जाम सप्लाई की बात ही नहीं आई। अच्छा, एग्जाम सप्लाई की बात नहीं आई तो ये स्टेटमेंट नहीं आएगा। कौन सा? ये वाला, कि वैल्यू ऑफ सच शिपमेंट्स हैज टू बी इंक्लूडेड बाय एबीसीडी लिमिटेड, नहीं, जीएसटी आता ही नहीं है। भाई मैंने ऑस्ट्रेलिया में बोल दिया कि भाई तू नेपाल में बेच दे, तो भाई जीएसटी तो इंडिया में लगता है ना, तो वो परव्यू में ही नहीं आता। सिमिलरली सिंगापुर को बोल दिया कि भाई तू ग्रीस को बेच दे, तो इंडिया में कुछ हो नहीं रहा तो नहीं आएगा। और दूसरा, इन केस ऑफ ट्रेड इन्वॉल्विंग बी इन ग्रीस एंड सी इन सिंगापुर, इनवॉइसेस शुड नॉट हैव बीन डन बाय एबीसीडी लिमिटेड। अच्छा, इंस्टीट्यूट ने इसमें ये ऑप्शन दिया है, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो भाई इनवॉइस अगर जीएसटी लग ही नहीं रहा है तो इंडिया में इनवॉइस भी नहीं बनेगा, जीएसटी लग नहीं रहा है तो इनवॉइस नहीं बनेगा। तो शुड हैव बीन डन, अगर ऑप्शन शुड हैव बीन डन अगर ये लाइन होती तो बोथ स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट होते। अगर शुड नॉट हैव बीन डन लाइन होती तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। तो आंसर ऐसा दिया है, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो मैंने इसमें क्वेश्चन में से नॉट को काट दिया, इसको भी आपको स्किप करना हो तो कर सकते हो। नॉट को काट दिया तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है?
कि इंडिया में अगर कोई गुड्स टच अपॉन नहीं हो रहा है तो उस पे जीएसटी लेविएबल ही नहीं है, स्कोप में ही नहीं है, तो एग्जेम्प्ट की बात नहीं है, और स्कोप में नहीं है तो इनवॉइसिंग की बात भी नहीं है। बहुत सिंपल था, थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए कि इंस्टीट्यूट ने इसमें मिस्टेक कर रखा है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। इस पे आ जाता है, प्रोवाइड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन बिटवीन एबीसीडी एंड पीक्यूआरएस इन द रिस्पेक्टिव बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आल्सो शो इट्स इम्पैक्ट ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सपोर्ट योर आंसर विद जर्नल एंट्रीज wherever necessary in the books of ABCD Limited. Following additional information are available. Exchange rates दिया है, ठीक है, देखते हैं इसको, बहुत इजी। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर कर दिया है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है, सब बताना पड़ता है। ट्रांजैक्शन क्या था ये भी यहाँ पे दे दिया है। एबीसीडी लिमिटेड सोल्ड गारमेंट्स टू पीक्यूआरएस फॉर यूरो 13 lakhs in on 1st January 2024. The cost of these garments was 936 lakh in the books of ABCD Limited at the time of sale. At the year end, 31st March 24, all these garments were lying in the closing stock of PQRS Limited. Euro is the functional currency of PQRS, INR is the functional currency of ABCD. एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या एंट्री होगी, सबसे पहले सेल, पीक्यूआरएस डेबिट टू सेल्स कितना, 13 लाख इंटू 83, क्यों, एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज 83, ठीक है, सेल्स हमने रिकॉग्नाइज किया। दूसरा, ईयर एंड पे रिसीवेबल को हम रीस्टेट करेंगे, कौन से, क्लोजिंग रेट पे, और क्लोजिंग रेट क्या है 85, 2 रुपए का जो एक्सचेंज है उसको हम गेन बुक करेंगे, तो क्या है, पीक्यूआरएस लिमिटेड टू फॉरेन एक्सचेंज गेन कितना, 2 रुपए से 26 लाख, ये सब लैक्स में चल रहा है, 1079 लैक्स और 26 लैक्स। तो मेरी बुक्स में अब रिसीवेबल का बैलेंस कितना हो गया, कितना हो गया, 1079 प्लस 26, 1079 प्लस 26, इतना पी एबीसीडी लिमिटेड की बुक्स में पीक्यूआरएस का रिसीवेबल दिखाएगा, सामने पीक्यूआरएस का एंट्री पास करेगा, उसका फंक्शनल करेंसी यूरो है, भूलना मत, तो परचेज डेबिट टू एबीसीडी लिमिटेड 13 यूरो, वो रिस्टेट नहीं करेगा, क्यों, उसका तो यूरो चल रहा है। समझ में आई, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होगा, सबसे पहले एबीसीडी लिमिटेड सेल्स बुक करेगा, अच्छा वो फिर रिस्टेट करेगा किसको, रिसीवेबल को, और पीक्यूआरएस तो 13 लाख यूरो पे ही अपना परचेस बुक करेगा। अब आएंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स पे क्या होगा, तो कंसोलिडेटेड में सबसे पहले जो रिसीवेबल पेएबल है वो नॉक ऑफ हो जाएगा, बात समझ में आई, रिसीवेबल पेएबल नॉक ऑफ हो जाएगा। अच्छा, पेरेंट कौन है, एबीसीडी लिमिटेड, तो पेरेंट की फंक्शनल करेंसी पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, ठीक है, तो क्या होगा ध्यान देना, एलिमिनेट द इंटरकंपनी रिसीवेबल, कैसे, एबीसीडी लिमिटेड की बुक्स में 1105 लाख का रिसीवेबल आएगा, 1105 कैसे आया, ये वाला 1079 प्लस 26 इज इक्वल टू 1105। अच्छा यहाँ पे क्या होगा ध्यान देना, पीक्यूआरएस की जो ट्रायल बैलेंस है वो एबीसीडी के पास जाएगी कंसोलिडेट होने के लिए, पीक्यूआरएस की बैलेंस ट्रायल बैलेंस में 13 लाख यूरो पेएबल आया होगा, किसका, एबीसीडी लिमिटेड का। अच्छा, पूरी ट्रायल बैलेंस रीस्टेट होगी किस पे, पूरी ट्रायल बैलेंस रीस्टेट होगी किस पे, परचेज सेल वगैरह सब एवरेज रेट पे कन्वर्ट होंगे, और क्लोजिंग बैलेंसेस सब क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होंगे, तो ये कन्वर्ट होके भी 13 लाख को 85 से रिस्टेट कर देगा, कौन, पेरेंट, कंसोलिडेशन के पर्पस के लिए। वापस वापस से ट्रायल बैलेंस जब पेरेंट के पास जाती है तो उसके फंक्शनल करेंसी में जाती है, फिर पेरेंट उसको रीस्टेट करता है, परचेज सेल पीएनएल को ज्यादातर एवरेज रेट पे, और क्लोजिंग बैलेंस को क्लोजिंग रेट पे, फिक्स एसेट होती है तो इसको हिस्टोरिकल रेट पे। तो ये जो पेएबल बैलेंस है वो भी तो 85 पे रिस्टेट करेगा, कौन, एबीसीडी, तो एबीसीडी की बुक्स में पेएबल रिसीवेबल कौन से अमाउंट पे आएगा, 1105 पे, तो नॉक ऑफ कौन से अमाउंट पे होगा, 1105 पे, ये एंट्री पास होगी, एबीसीडी लिमिटेड डेबिट टू पीक्यूआरएस लिमिटेड, एबीसीडी लिमिटेड का पेएबल डेबिट टू पीक्यूआरएस का, मेरे बाजू में घर पे स्कूल है उसकी घंटी बजी, ठीक है, 1105 नॉक ऑफ हो जाएगा, बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, पीक्यूआरएस लिमिटेड की बुक्स में यहाँ से जब ट्रायल बैलेंस जाएगा तब 13 लाख का पेएबल जाएगा और 13 लाख की इन्वेंट्री भी होगी, इसकी बुक्स में इन्वेंट्री पड़ी होगी जो अनसोल्ड है, उस पे अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, कहाँ पे, कंसोलिडेटेड पीएनएल में, कैसे होएगा ध्यान दो, क्लोजिंग इन्वेंट्री 83 पे दिख रहा होगा, कॉस्ट पे 1079, उसकी, ये तो कॉस्ट किसकी है, ये कॉस्ट टू पीक्यूआरएस है, लेकिन हमें देखना है कॉस्ट टू ग्रुप, हमें देखना है क्या, कॉस्ट टू ग्रुप, कॉस्ट टू ग्रुप क्या है 936, तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है 143 लाख का जो एलिमिनेट हो जाएगा,
कंसोलिडेटेड पीएनएल डेबिट टू इन्वेंट्री। कंसोलिडेटेड पीएनएल को डेबिट किया मतलब प्रॉफिट को कम किया एंड इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया। तो सबसे पहले हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या किया, रिसीवेबल पेएबल को नॉक ऑफ किया। अच्छा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेंट्री को क्यों नहीं छेड़ा? अरे इन्वेंट्री तो पड़ा है ना, वो थोड़ी रिसीवेबल पेएबल के साथ नॉक ऑफ होगा, रिसीवेबल पेएबल नॉक ऑफ होगा, इन्वेंट्री तो पड़ा है। और दूसरा पीएनएल में उसका अनरियलाइज प्रॉफिट को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो अकाउंटिंग में ये दो एडजस्टमेंट किए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एक किया, कंसोलिडेटेड पीएनएल में एक किया, ठीक है। तो अभी आप अगर ये पूछो कि ग्रुप की बैलेंस शीट में रिसीवेबल पेएबल दिख रहा होगा 0 इल, और इन्वेंट्री कितने पे दिख रहा होगा 936 लाख पे, जो कॉस्ट टू ग्रुप है उस पे मेरा इन्वेंट्री दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि बहुत लॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा यूनिट्स एलएलसी हैज सेट अप अ ब्रांच ऑफिस इन सूरत, डिस्कस इट्स implications under Companies Act 2013, which documents have to be furnished on establishment of branch office of a company incorporated outside India under Companies Act 2013। अच्छा ध्यान देना, एक सेक्शन आती है इंटर में, आपने पढ़ा होगा सेक्शन 2 क्लॉज 42, जिसमें फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन है। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच has a place of business in India whether by itself or an agent physically or through electronic mode and conducts any business activity in India in any manner, उसको फॉरेन कंपनी बोले। वापस से, कोई कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, उसकी ब्रांच ऑफिस है, एजेंट है, कोई भी प्रेजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक है, फिजिकल है, और वो इंडिया में कोई भी बिजनेस करती है तो उसको फॉरेन कंपनी मानते हैं। अच्छा, अब आप पढ़ोगे ओल्ड कोर्स में जाके, न्यू कोर्स में नहीं है ये चैप्टर, ओल्ड कोर्स में जाके एक चैप्टर है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वहां पे एक सेक्शन आती है, वो ये बोलती है, सेक्शन कौन सी, वो ये बोलती है कि अल्फा यूनिट्स एलएलसी नीड्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब ध्यान दो, यहाँ पे कोई भी फॉरेन कंपनी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है उसको चैप्टर 22 के कुछ प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। वो सेक्शंस कौन सी है, 379 है, 380 है, 381 है, इन सेक्शंस को उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरी बहुत भयंकर कंडीशन कि उस फॉरेन कंपनी में इंडिया का 50% या उससे ज्यादा शेयर है, 50% या उससे ज्यादा शेयर है, तो उसको पूरे कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस को कंप्लाई करना। वापस एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, 242 में फॉल हो गई तो उसको कुछ सेक्शंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें किसी इंडियन का होल्डिंग है, इंडियन मतलब इंडियन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट और ग्रुप ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, या इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट को मिला के 50% से ज्यादा हो गया, तो उसको पूरे कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। ये हुआ इम्प्लीकेशन किसका, अल्फा यूनिट्स एलएलसी ने इंडिया में ब्रांच ऑफिस खोला तो उसका क्या इम्प्लीकेशन आएगा। वापस से, Alpha Units LLC branch falls under 242. Alpha Units LLC needs to comply with provisions of Chapter 22 of the Companies Act. Plus मैंने लिखा है, follow all provisions of Companies Act 2013 as if it was the company incorporated in India if 50% or more of the paid up share capital, equity and preference is held by one or more citizens of India, individual मैंने बोला था, one or more companies or body corporates incorporated in India, or one or more citizens or body corporates incorporated in India combined। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन। तो क्या पूछा है कि वहां से एक ब्रांच ऑफिस इंडिया में खोलने का इम्प्लीकेशन क्या है, तो हमने इम्प्लीकेशन बता दिया। अच्छा, केस स्टडी के आंसर में सिर्फ इतना ही बताया, मैंने एडिशनल क्यों दिया, क्योंकि वो पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर इंस्टीट्यूट ने डाला ही नहीं है, सेल्फ पेस्ड में, ठीक है, और उसमें से क्वेश्चन आ गया तो इंस्टीट्यूट क्या करना चाह रही है, आई डोंट नो। और मैंने इंस्टीट्यूट को मेल भी लिखा है कि ये केस स्टडीज में ये इश्यूज है और आप कौन सी केस स्टडीज इश्यू करने वाले, उसका रिप्लाई नहीं आया अभी तक, 2 दिन पहले मेल किया। और 2, ध्यान देना, विच डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी फर्निश्ड ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच ऑफिस ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 380 सब सेक्शन 1, प्रोसीजरल क्वेश्चन है, खुद पढ़ लेना, मैं नहीं करा रहा क्योंकि उसमें कराने का कुछ है ही नहीं। देखो, अंडर सेक्शन 380 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट एवरी फॉरेन कंपनी शैल विद इन 30 days ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया डिलीवर टू द रजिस्ट्रार फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। और ये लंबी चौड़ी लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, देखो ये पूरी लिस्ट है। अब ये अगर एग्जाम में आया तो बुक में से देख के छाप देना, इसमें मैं क्या पढ़ाऊँ, बात समझ में आई, प्रोसीजरल क्वेश्चन बहुत सिंपल। और लास्ट क्वेश्चन,
Discuss the implications of proposed transaction related to sending companies merchandise for display in textile fair in Italy. Also discuss under what circumstances goods sold in India can be categorized as export under GST law and also touch upon the taxability of such transactions. ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये वो दो ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर क्वेश्चन है. Rahul seeks Nitin's opinion on GST procedures and treatment of the following two export transactions, which he planned to proceed with near future. Rahul has purchased license to put up a stall in textile supermarket Global Fair to be held in Milan, Italy, and he wishes to send his team to this fair along with their company's merchandise to be displayed all for the promotional purposes. इस पे GST का क्या implication है? अच्छा, ट्रांजैक्शन क्या है, यहाँ से मैं आदमी लोग भेज रहा हूँ, वहां पे फेयर है, उधर एग्जीबिशन के लिए, उधर एग्जीबिशन के लिए. अच्छा, इस ट्रांजैक्शन में कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व है? नहीं. तो क्या ये सप्लाई है? बिल्कुल नहीं. तो इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं. वापस से, क्या इस ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन इन्वॉल्व है? नहीं. तो क्या ये सप्लाई की डेफिनेशन को फुलफिल करता है? नहीं. तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं. क्या ये एक्सपोर्ट है? जीरो रेटेड? नहीं, ये एक्सपोर्ट भी नहीं है, तो ये जीरो रेटेड भी नहीं है. तो क्या इसमें एलयूटी फाइल करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं. वापस से, ये तो एक्सपोर्ट भी नहीं है, क्यों? इसमें कंसिडरेशन नहीं और एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में भी नहीं आता. तो इसमें क्या मुझे एलयूटी फाइल करनी पड़ेगी जब मैं गुड्स को बाहर लेके जा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं. यही है. नॉट अ सप्लाई, हेंस जीएसटी नॉट एप्लीकेबल. रीजन क्यों? नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व. रेफरेंस कौन सा देना है? सर्कुलर नंबर 108. अच्छा है, क्या ये मॉड्यूल में है? नहीं. आपकी आईडीटी के मॉड्यूल में चैप्टर 1 है सप्लाई का, उसमें ये सर्कुलर का रेफरेंस नहीं दिया गया है, केस स्टडी में ले लिया है. लेकिन आपको लॉजिकली आंसर करना है कि कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई भी नहीं है. ऑल्सो दिस वोंट बी ए जीरो रेटेड सप्लाई अंडर एक्सपोर्ट, हेंस बॉन्ड और एलयूटी इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, बात का सार क्या है? एग्जीबिशन के लिए गुड्स बाहर लेके जा रहा हूँ, कंसिडरेशन नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो जीएसटी लगेगा? नहीं. अच्छा, ये एक्सपोर्ट भी नहीं है तो एलयूटी फाइल करना पड़ेगा? नहीं. तो ये सप्लाई कब बनेगा? जब मैं वहां पे जाके कुछ सेल करूंगा, तब ये सप्लाई बन जाएगा, एक्सपोर्ट. बात समझ में आई? ठीक है सर. अब इसमें एक्सपोर्ट का क्या इंप्लीकेशन होगा, जीएसटी में पढ़ लेना, या आगे की स्टडी में आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा. मैं सिर्फ इस केस स्टडी के रिलेवेंट आपको बताया हूँ कि भाई क्या इंप्लीकेशन आएगा. सेकंड, ये ट्रांजैक्शन खत्म हो गया. He had heard from a dear friend that he could sell his company's products within India. They would be still categorized as export. He is eager to know such circumstances. अच्छा, सेक्शन 147 करके एक सेक्शन होती है जीएसटी में, जहाँ पे बात की गई है डीम्ड एक्सपोर्ट्स की. किसकी बात की गई है सर? डीम्ड एक्सपोर्ट्स की, जहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स. अच्छा, इसमें सर्विसेज है? बिल्कुल नहीं. ये एक बेनिफिशियल प्रोविजन है जहाँ पे आप अगर गुड्स किसी सर्टन जगह पे या सर्टन बायर को आप सप्लाई करते हो तो दे आर कैटेगराइज्ड एज एक्सपोर्ट्स, एंड उसमें आपको एक्सपोर्ट के बेनिफिशियल प्रोविजंस मिलते हैं. सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर गुड्स डू नॉट लीव इंडिया बट स्टिल कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट, सेक्शन 147. गुड्स शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड दीज आर नॉट जीरो रेटेड. देखो, एक्सपोर्ट जीरो रेटेड होता है, ये जीरो रेटेड नहीं है, तो इसमें आप एलयूटी फाइल नहीं कर सकते. आपको अपॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी इस ट्रांजैक्शन को अंडरटेक करना पड़ेगा. लेकिन क्या उस टैक्स पेड का आपको रिफंड मिलेगा? बिल्कुल 100% रिफंड मिल जाता है. तो क्या बात है? Taxability of deemed exports. As deemed exports are not zero rated, supply has to be done upon payment of taxes and not under bond or LUT. रिफंड, फुल रिफंड मिल जाता है. अच्छा, ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जिसको डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं? यहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर एडवांस ऑथराइजेशन. ये आप कस्टम्स में पढ़ोगे. सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर ईपीसीजी, ये भी कस्टम्स में आएगा. ईओयू भी कस्टम्स में आएगा. और सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय बैंक और पीएसयू स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, ये एडिशनल याद रखने का. तो बात का सार क्या है? सेक्शन 147 में डीम्ड एक्सपोर्ट बोला है, वो जीरो रेटेड नहीं है, तो अपॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी आपको वो ट्रांजैक्शन अंडरटेक करना पड़ेगा. फुल रिफंड मिल जाता है. किसका? जो भी टैक्स पे किया. रिफंड कैसे मिलता है? रिफंड्स के चैप्टर में आपको बताया गया है. ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने इसके आंसर में रिफंड के प्रोसीजर को टच अपॉन नहीं किया, तो अपन ने भी नहीं किया. अच्छा, ये क्वेश्चन आएगा कि सर इंस्टीट्यूट जिस चीज को टच अपॉन नहीं करता आंसर में, उसको हमें करना पड़ेगा क्या? थोड़ा जजमेंट लगाना पड़ेगा कि भाई इंस्टीट्यूट ने कितने मार्क्स के लिए पूछा है और उसका वर्डिंग क्या है. सिर्फ टच अपॉन द टैक्सेबिलिटी बोला है तो रिफंड मिल जाएगा, उतने पे ही हम खत्म कर देंगे. लेकिन अगर ऐसा पूछा है कि रिफंड कैसे मिलेगा, तो आपको रिफंड का भी प्रोसीजर लिखना पड़ेगा. ठीक है, ये आपकी केस स्टडी नंबर 5 थी. थोड़ी अजीब लगी मेरे को बिकॉज ऑडिट के ऊपर इतना बड़ा पैराग्राफ देके उन लोगों ने सिर्फ 2 मार्क पूछा.
टू क्लॉज 42 फॉरेन कंपनी, वहाँ से जाके पूछ लिया इंटर में जाके, और एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट था बहुत बड़ा। लेकिन अभी क्या करें, इंस्टीट्यूट ने दिया है तो करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ी अब्बा डब्बा जब्बा हुआ बीच में पढ़ने का, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, चला लेना या इतना चला सकते हो है ना। और पढ़ते रहो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वही सब बातें रिपीट होती रहती है। टेक केयर।